की सबसे बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पे जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर से पर्दा उठ गया है और जो कमेटी ने सिफारिश दी थी उस पर मुहर लग। ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदुड़ी ने वहां जिस तरीके का की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है। क्या बात है? आज गांधी और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। तो ये आप सुन रहे थे दानिश अली को, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि विपक्ष जो है आज वो एकजुट है और जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है वो अन्यायपूर्ण है। Abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They're at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessman to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. अलग है, मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे, इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए, बिल्कुल साफ है। अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो, 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांगवादिक के पास है, मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर, आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और सिर्फ बदले की भावना से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गई, बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं।
तो देखिए, लगातार बड़ी खबर पर बने हुए हैं। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई और इस वक्त हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं संसद भवन से। संजीव, क्या मायने निकाले जाएं? और जिस तरीके से हम महुआ मोइत्रा को सुन रहे थे, अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे, महिला एमपी को हैरेस किया जा रहा है, ये महुआ मोइत्रा भी कह रही हैं और अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखें तो केंद्र सरकार 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हासिल हुई, वो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक ही उसे जीत का माध्यम माना जा रहा है। और अब वुमेन एमपीज को हैरेस करना, तो ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले का एक तकनीकी पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है, और जो राजनीतिक पक्ष है उसे प्ले आउट होता हुआ अभी आप देख रही थी। राजनीतिक पक्ष इसका ये है कि सभी विपक्षी दलों को एक होने का इस पूरे मामले ने एक और अवसर दिया है, और जो सरकार और विपक्ष के बीच का जो टकराव है, उस टकराव में हम ये कह सकते हैं कि महुआ मित्रा एपिसोड एक भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि कैसे महुआ मित्रा के सवाल पर न केवल उनकी पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष उनके साथ, उनके पीछे खड़ा था, और इसे बनाया गया मुद्दा कि महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। राजनीति में वैसे भी महिलाओं के लिए बहुत आसान नहीं है राह, और ऐसे में जबकि एक महिला यहाँ तक पहुँचती है तो उसे साजिश के तहत निकाल दिया जाता है। ये आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाल में जो चुनाव हुए थे तो जाहिर है उसमें महिलाओं का खूब समर्थन मिला था, और अब महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। लेकिन इसका जो तकनीकी पक्ष है वो शायद आपने कुछ सुना महुआ मित्रा के बयान में, और कुछ नहीं भी, क्योंकि महुआ मित्रा के बयान भी जो थे वो ज़्यादातर राजनीतिक बयान थे। तकनीकी पक्ष इसका ये कहता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें गलतियां दोनों तरफ से हैं। जैसे सुना जाए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप है, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उन्हें सुना जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें मौका दिया गया था, उन्होंने बोला नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि क्या आखिर अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी दूसरे से कोई एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद शेयर कर सकता है? और उसका जवाब सीधे ना में है। तो महुआ मित्रा का ये कहना है कि कोई कानून तो बनाया नहीं है, हम सब अपने पीए को देते हैं, तो क्या आपने पीए को देने की बजाय किसी अपने मित्र को दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि दूसरे देश में बैठ कर के आपके बिहाफ में सवाल अपलोड कर रहा था, और वो सवाल आप संसद में पूछ रहे थे? ये तमाम प्रश्न हैं जो कि दोनों तरफ से पूछे गए हैं, और पाक साफ कोई नहीं है। यहाँ के बाद मामला अदालत में जा सकता है, और अदालत में 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिस पर महुआ मित्रा लड़ेंगी। पहली तो ये है कि उन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत बोलने का अवसर नहीं दिया गया संसद में, जो कि आज बार बार आपने सुना होगा कहा जा रहा था। और दूसरी बात ये भी है कि जब कोई कोड और एथिक्स है ही नहीं, जब कोई नियमावली बनी ही नहीं है कि किसे आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए दंडित कैसे किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना डिस्प्रपोर्शनेट दंड है कि क्या अपराध क्या है और सजा इतनी बड़ी दे दी गई है। अब देखना यह है आने वाले दिनों में कि मामला सिर्फ अदालत जाता है या फिर सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियां भी महुआ मित्रा से पूछताछ करेंगी। जी संजीव, संसद के अंदर की तस्वीर को कैसे देखा जाए? पल भर में ही तस्वीर बदल गई। जैसे ही फैसला आया, तमाम जो विपक्ष है वो लामबंद होता नजर आया। महुआ मोइत्रा के साथ सोनिया गांधी खड़ी नजर आई, फारूक अब्दुल्ला नजर आ रहे थे, टीएमसी के तमाम सांसद, कांग्रेस के तमाम सांसद, पूरा विपक्ष लामबंद था। और अभी बताया जा रहा है गांधी प्रतिमा पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये जो धरना है, ये प्रदर्शन है, क्या डे लॉन्ग भी चल सकता है? विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होगा इस मुद्दे पर? यहाँ देखिए, आज सुबह से ही संसद में वैसे तो कई मुद्दे थे, लेकिन एक ही मुद्दे के आसपास पक्ष प्रतिपक्ष की बातें हो रही थी, और सबों का ये कहना था कि महुआ मित्रा का जो मामला है ये सरकार और विपक्ष के बीच एक और टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा, और वही होता दिखाई पड़ रहा है। गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है, और आपने देखा कि जब महुआ मित्रा बोल रही थी तो पीछे उनके विपक्ष के तमाम बड़े नेता खड़े थे। इसका मतलब ये है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को अपना लिया है, ओन अप कर लिया है। शुरुआत में ये लग रहा था कि कौन कौन आएंगे महुआ मित्रा के साथ, लेकिन पहले उनकी पार्टी और उसके बाद तमाम विपक्ष उनके साथ खड़े हो गए हैं। और ये एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, विपक्ष को ऐसा लगता है, क्योंकि एक महिला के साथ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि जब सवाल आता है नियम और शुचिता का, तो उसमें फिर न्याय और अन्याय हमेशा हम लोग महिला या पुरुष के संदर्भ में नहीं देख सकते हैं, और यहाँ गलती हुई है। देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि महुआ मित्रा सबसे ज़्यादा मुखर रूप से सरकार के खिलाफ बोला करती थी,
थी और कई बार वो सरकार को अपनी बातों से असहज भी कर देती थी, उनकी बातों की तारीफ भी हुआ करती थी। लेकिन क्या उन्होंने इस क्रम में कुछ ऐसा कर दिया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था? क्या कानूनन उन्होंने कोई ऐसी गलती की है? और क्या अगर गलती हुई है तो फिर जितनी गलती हुई है उससे बहुत ज़्यादा सज़ा दे दी गई है? कहीं ऐसा मामला तो नहीं है? ये ऐसे प्रश्न हैं। लेकिन यहाँ मानकर चलिए कुछ ही महीने बचे हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं और आज जो यहाँ घटित हो रहा है राजनीतिक रूप से ये तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, खुद महुआ मित्रा को बहुत फायदा पहुंचाएगा, ऐसा मानना विपक्ष का है। और शायद यही वजह है कि विपक्ष जो है वो महुआ मित्रा के पीछे संजीव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि महुआ मोइत्रा का पूरा मसला सामने आया कि उन्होंने लोकसभा में पैसे के बदले सवाल पूछा है, उसके बाद एक एथिक्स कमेटी बनती है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। आखिर वो कौन सी सिफारिशें हैं, कौन सा ऐसा आधार है जिसे इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को ही रद्द कर दिया गया? क्योंकि महुआ मोइत्रा, हालांकि ये स्वाभाविक है कि जब कोई आरोप लगता है तो जो दूसरा पक्ष है वो लगातार ये कहता है कि मैंने आईडी पासवर्ड शेयर नहीं किया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे ऊपर कल सीबीआई जो है वो भी रेड कर सकती है। तो ऐसा कौन सा आधार है जिसे इतना स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया कि संसद सदस्यता तक रद्द हो गई? देखिए, अगर बहुत सिंपल तरीके से कहें तो बस 2 पॉइंट्स हैं। पहली तो ये है कि संसद और संसद सदस्य, इन दोनों के बीच एक जो कम्युनिकेशन होता है वो बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल होता है और उस कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को पढ़ने का, भेजने का ये अधिकार संसद के अधिकारी और संसद सदस्य के बीच ही होता है और इसे कोई तीसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कई गोपनीय ऐसी बातें जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई होती हैं वो संसद सदस्य को भेजी जाती हैं। कई बिल जो बाद में कानून बनकर सामने आते हैं वो भी आजकल आप जानती हैं कागज़ों का तो इस्तेमाल होता नहीं है, वो भेजी जाती हैं। अब इसका दूसरा पक्ष ये है कि महुआ मित्रा, और अमूमन ऐसा होता है, सभी सांसद अपने ऑफिस में किसी स्टाफ को दे देते हैं कि आप हमारे बदले क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए, क्वेश्चंस डाल दीजिए जो मैं पूछूंगा लोकसभा में, क्योंकि आप जानती हैं कि क्वेश्चन पूछने के लिए पहले कराएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। From Lok Sabha and opposition criticizing. तृणमूल देश के लिए अनैतिक काम करते हैं, ये आज एकदम प्रमाणित हो गया। एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया कि वो यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर किए थे और एक दिन उनका पोर्टल धरती के 4 जगह कहाँ देश में, दिल्ली, बेंगलोर और बाहर में दुबई और यूएसए, ये 4 जगह से उनका पोर्टल खुलता है। और किसके लिए? एक बिजनेसमैन के लिए, एक कॉरपोरेट हाउस के लिए। उनका जनप्रतिनिधि बनाए कृष्णनगर के लोगों ने, तो कृष्णनगर के जनता, बंगाल की जनता के क्या दुख है इसके बारे में सदन को बताना, ये काम उन्होंने नहीं, उनका पसंद नहीं है। तो जैसे तृणमूल के हर समय वो अपने खुद के हिस्से, पार्टी का हिस्सा ऐसे ही देखते हैं, और इसके लिए जो भी गलत काम वो करने के लिए तैयार है। वो जो कमेटी का मीटिंग हुआ ना, वो मीटिंग में चेयरमैन को कहा बेशरम। आप देखिए, आपका मीडिया के एक बंधु उसको पूछा था कि आप रो रहे हैं क्या, तो जैसे आंखों ऐसे करके दिखाया, वो कोई हमारे भारतीय नारी की परंपरा नहीं है। वो छवि आप दिन भर दिखाया बहुत दिन से, वो हमारे भारतीय नारी का परंपरा नहीं है। तो पहले आप प्रियंका चतुर्वेदी को सुन रहे थे जो शिवसेना की सांसद है, जिनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से अन्याय हुआ, और अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार को, जिनका कहना है कि फैसला जो है वो पूरी तरीके से तथ्यों के आधार पर लिया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गांधी प्रतिमा के पास जो है वो पूरा विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। शुरू से लेकर अंत तक पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद नजर आया है और लगातार हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, अगर सुबह से मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझना चाहूं, सुबह महुआ मोइत्रा आती हैं, हालांकि बहुत ज्यादा उस वक्त भी उनके जो कहा जाए कि तेवर थे वो
आक्रामक नजर आ रहे थे। आपने उनसे सवाल भी किया था और उसका जवाब उन्होंने कुछ शेरो शायरी में दिया था। उसके बाद आपने सुदीप बंदोपाध्याय से भी बात की, जिन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। हालांकि लोकसभा में चर्चा भी हुई, और अब ये फैसला कैसे देखेंगे? जी हाँ, जब वो सुबह पहुंची तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आज रिपोर्ट पेश होने वाली है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बंगाल के बहुत बड़े कवि हुए हैं काजी नजरुल इस्लाम, उनकी कविता कही, और फिर बाद में दूसरी कविता उन्होंने रामधारी से दिनकर राष्ट्र कवि उनकी कविता सुनाई, नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और फिर उन्होंने अपनी तुलना द्रौपदी से की और कहा यह महाभारत है और चीरहरण के बाद जो संग्राम होगा उसकी कल्पना सरकार ने नहीं की है। तो संभवतः वो एक राजनीतिक लड़ाई की तरफ इशारा कर रही थी, और ऐसा अभी इस वक्त जिस तरह से हम गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन देख रहे हैं वो होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। दिन भर हमने एक के बाद एक जो लोगों से बात की विपक्ष में, तो तमाम विपक्ष जो है वो महुआ मित्रा के पीछे, और ये न्यायोचित है और संसदीय मर्यादाओं को ऊपर रखने के लिए किया गया है। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इंग्लिश तो ये राजीव प्रताप रूडी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि नियमों के अनुसार ही एक्शन जो है वो लिया गया है। और लगातार संजीव हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा था कि एथिक्स कमेटी और उसके सदस्यों का ये बराबर मानना था। और वो गलती वही थी कि एक ही दिन में आखिर 4 जगहों से पृथ्वी पर कैसे कोई प्रेजेंट हो सकता है, और ये अगर लॉगिन हुआ है तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, और कोई ऐसी बात है जो कि केवल संसद सदस्यों को पता होनी चाहिए, वो दुनिया भर में किसको किसको पता है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में तो दंड मिलेगा। पर यहाँ प्रश्न ये हो जाता है कि अगर ये मामला सदन के पास आया था तो क्या महुआ मित्रा को बोलने की एक बार कम से कम इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी? ये पहले से हमें पता चल गया था कि उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो आदमी आरोपित है उसे नहीं बोलने दिया जाएगा। लेकिन देखिए, খুবই দুঃখজনক, আগে আমি বাংলায় বলবো তারপরে আমি হিন্দিতে ইংলিশে আসবো। খুবই দুঃখজনক, মহুয়া মৈত্র কৃষ্ণনগরের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, ভোটে তাকে পরাজিত করতে না পেরে বিজেপি তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে 557 পাতা রিপোর্ট পাঠিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে সবাই ডিসকাশন করে বারবার করে সাংসদরা বলেছে, আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্সরা বলেছে যে আমাদের রিপোর্ট পড়বার সুযোগ দাও, সেটা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকি মহুয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এটা দেখে বোঝা যায় যে পলিটিক্যালি বিজেপি গণতন্ত্রের সাথে লড়তে পারে না। পলিটিক্যালি ওদের পলিটিক্যাল ভ্যান্ডেটা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য একজন মহিলাকে, স্পেশালি বিলংস টু ইয়াং জেনারেশন, তাকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, যেভাবে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, এটা যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের না সুযোগ দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে, আমি সেটাকে ধিক্কার জানাই। দল সম্পূর্ণভাবে মহুয়া মৈত্র পাশে ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা চেয়েছিলাম সুবিচার হোক, বিচার করলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তুমি সিবিআইও করবে, আবার ওদিকে এক্সপালশনও করবে। কমাস বাদে ইলেকশন, 2 মাস বাদে 3 মাস বাদে বড়জোরের একটা সেশনে অ্যাটেন্ড করতে পারতো, সেই সুযোগটাও তোমরা দিলে না। এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যে বিজেপি কতটা প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতি করে। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. I don't understand. 575 or 557 pages, 495 pages report. Sorry, এটা বাংলাতেও কারেকশন একটু করে দেবেন। 495 pages report just submitted today of ethics in the name of so-called BJP majority. तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दी। हमारे साथ एसटी हसन, समाजवादी पार्टी सांसद हैं। सर, जिस तरीके से ये फैसला हुआ, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, टोटली
प्रीजुडिस फैसला था। आज देश की डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट के अंदर आज एक बहुत दुखद दिन है। जिसके ऊपर इल्जाम लगे उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं पार्टी का लीडर हूं, मैंने भी लगाया था, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। सिर्फ आधा घंटा, इतने क्रूशियल, इतने सीरियस इल्जाम तो आधे घंटे में आप क्या कह सकते हैं। 12 बजे आपने रिपोर्ट अपलोड करी और आपने 2 बजे डिस्कशन के लिए रख दी, और जो तकरीबन 400 पेज की रिपोर्ट है, तो आपको नहीं लगता कि ये सब प्री प्लान है और किस तरह से इन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। कम से कम महुआ को अपना पक्ष रखने दिया जाता, सबकी बात सुनी जाती। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनके पास ही जाता, फिर जो भी जुडिशियल डिसीजन होता उसके हिसाब से महुआ को सजा मिलती। हम किसी भी क्राइम के या क्रिमिनल के साथ नहीं है, लेकिन बिला वजह किसी को क्रिमिनल बना दिया जाए, इसके हम खिलाफ हैं। टीएमसी दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय लगातार ये कह रहे थे कि कम से कम उनको बोलने का मौका दिया जाए, महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिया जाए। उनको बोलने का मौका नहीं दिए जाने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि पहले से सब डिसाइड करके आए थे हमें क्या करना है। महुआ मोइत्रा बोलेगी, आप लोग सुनेंगे, आप लोग टेलीकास्ट करेंगे, देश समझेगा कि देश के अंदर हो क्या रहा है, देश के अंदर संविधान के साथ क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये सब कुछ करा है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी हम लोग बोलते हैं वो रिकॉर्ड में होता है। अब से 50 साल बाद वो रिकॉर्ड देखा जाएगा तो भी वही निकलेगा। इसलिए नहीं बोलने दिया गया कि हम जो नाइंसाफी कर रहे हैं वो आम उस पर ना आ जाए तो सामने लोगों के। ये तो वो हैं कि मारे भी और रोने ना दें। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई, इस पर बात करने के लिए दानिश अली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो आरोप आप बार बार एथिक्स कमेटी के बैठक के दरमियान लगाते रहे कि आप लोगों की सुनी नहीं जा रही थी, सिर्फ अपने फैसले सुनाए जा रहे थे, दस्तखत किए जा रहे थे, अब सरकार उन्हीं नियमों के हवाला को देकर के महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द कर दी। सरकार के पास बहुमत है और बहुमत के आधार पर ये हर चीज को बुलडोज कर रहे हैं। बहुमत का मतलब ये नहीं, प्रचंड बहुमत का मतलब ये नहीं। आज महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आत्मा रो रही हो कि किस तरीके से एक वोकल महिला सांसद को, जो अब विपक्ष की जागरूक सांसद होने का जो है अपना रोल प्ले कर रही थी, उसको किस तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी के आधार पर आपने जो है एक्सपेल कर दिया। डोंट टर्न विक्टिम इनटू कल्प्रेट, ये बार बार आप कह रहे हैं कि जो कल्प्रेट है उसी को आप विक्टिम जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आज जब संसद में एक सत्ता पक्ष से सांसद बोल रहे हैं, उन्होंने कहा संसद की मर्यादा भंग हो गई कि इन्होंने अपना लॉगिन जो है किसी दूसरे को दे दी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि संसद की मर्यादा तो 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी जब रमेश बिदूड़ी ने गाली गलौज की थी, या लॉगिन देने से संसद की मर्यादा भंग हुई है? वो संसद की मर्यादा भंग होने पर कोई कार्रवाई नहीं, और लॉगिन देने पर सांसद की सदस्यता जो है छीन ली जाती है। तो मैं तो महात्मा गांधी की स्टैचू के नीचे इसलिए आया हूँ, मैं तो B.R. अम्बेडकर की स्टैचू के नीचे इसलिए आया हूँ कि आज इन दोनों की आत्माएं रो रही हैं। शुक्रिया। तो दानिश अली हैं और कह रहे हैं कि आज संसद में भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की आत्मा रो रही होगी, क्योंकि संविधान का हनन इसी संसद में हुआ है। ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।